Dear students, now I am going to discuss the block diagram of op-amp. As discussed in the very first class of op-amp, that internal architecture of op-amp is very complicated. 24 transistors and 12 resistances are connected. The basic building block of this op-amp is a differential amplifier. Differential amplifier is the combination of two transistors. I will discuss it later. First of all, the internal circuit of the op-amp is divided into 4 stages. You can see here 4 stages. The input stage is called, the first stage is called input stage, the second stage is called intermediate stage, and the third stage is called level shifting stage or level shifter, and the last stage is called output stage. Okay guys, now the first stage is basically a differential amplifier, and that differential amplifier is called dual input balanced output differential amplifier. Why dual input? Because there are two inputs, one is the inverting input and another one is the non-inverting input, and there are two outputs. That is why this is called dual input balanced output differential amplifier. I will discuss the circuit just after this page. Okay, now the second stage is the dual input unbalanced output differential amplifier. Why it is unbalanced? Because there is only one output. That is why this is called single output or unbalanced differential amplifier. The third stage is made up of emitter follower, or you can say common collector amplifier with constant current source. And the final stage, that is output stage, is a complementary symmetry push-pull amplifier. Complementary symmetry push-pull amplifier. Why it is called complementary? Because the circuit is of two transistor, and at a time only one transistor conducts and another transistor do not conduct. That this means both the transistors are complementary of each other, and that is why this is called complementary, and they are mirror image of each other. That is why this circuit is called complementary symmetry push-pull amplifier. Now I am going to discuss the 4 stages of the op-amp one by one. The input stage, it is basically a dual input balanced output differential amplifier. It provides the very high input impedance. Ideally the input impedance is infinity, but it provides the very high input impedance, ideally infinity, to the op-amp. ये op-amp सर्किट को वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस प्रोवाइड करता है, आइडियली इन्फिनिटी इनपुट इम्पीडेंस प्रोवाइड करता है, साथ साथ ये कुछ वोल्टेज गेन को भी प्रोवाइड कराता है. आपको पता है कि इनपुट इम्पीडेंस भी इन्फिनिटी होता है और वोल्टेज गेन भी इन्फिनिटी होता है, तो ये कुछ वोल्टेज गेन को भी प्रोवाइड करता है. और जैसा कि सर्किट मैंने बताया था कि आपको बाद में डिस्कस करूंगा, तो यही एक सर्किट है. आप देख सकते हैं कि ये इस सर्किट को डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहा जाता है. और ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट को देखिए किस तरह से बनता है. 2 ट्रांजिस्टर है, इसमें एक सप्लाई वोल्टेज वीसीसी है, आपको पता है वही वीसीसी है जो op-amp का 7वें पिन में दिया जाता है, और ये चौथे पिन में माइनस वीसीसी बोलते हैं, जिसको माइनस वीई कहा जाता है. 2 ट्रांजिस्टर है बेसिकली, और दोनों ट्रांजिस्टर के बेस में 2 इनपुट देते हैं. इस इनपुट को वी इनपुट 1 कहते हैं और इस इनपुट को वी इनपुट 2 कहते हैं. बेसिकली दोनों इनपुट एक दूसरे का उल्टा होता है. अगर आप इसको पॉजिटिव इनपुट माने तो इसको नेगेटिव इनपुट मानेंगे. अगर ये नॉन इन्वर्टिंग है तो ये इन्वर्टिंग है, अगर ये नॉन इन्वर्टिंग है तो ये इन्वर्टिंग है. इसका मतलब दोनों इनपुट जो है, यानी इसका जो इनपुट होता है रिजल्टेंट इनपुट को डिफरेंस इनपुट कहते हैं. और ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डिफरेंस इनपुट को ही एम्पलीफाई करता है. और इस सर्किट में आप देख सकते हैं दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आउटपुट लिया गया है, वी आउटपुट 1 एंड वी आउटपुट 2, इसलिए इसको कहते हैं बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर. तो इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर का नाम है डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर. ओके गाइज, तो दिस सर्किट इज इन द वेरी फर्स्ट स्टेज, दैट इज इन द इनपुट स्टेज. नाउ the second stage is called intermediate stage, and this is basically a dual input unbalanced output differential amplifier. Unbalanced output means single output differential amplifier, and this circuit provides the very high voltage gain टू द op-amp. और आपको पता है वोल्टेज गेन फर्स्ट स्टेज भी प्रोवाइड करता है, तो सेकेंड स्टेज मैक्सिमम वोल्टेज गेन प्रोवाइड करता है. और ये सर्किट यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हैं कि ये भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, लेकिन अनबैलेंस्ड आउटपुट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही आउटपुट लिया गया है. तो देयर आर 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट, दैट इज व्हाई दिस डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज कॉल्ड डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर. ओके गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द
level shifter. Level shifter is basically third stage of the op-amp, and it is basically a emitter follower or common collector amplifier with constant current source. Okay guys, and it shift the non-zero DC output to the zero output. एक्चुअली होता क्या है कि सपोज आप इस op-amp के मदद से कोई भी AC सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं और एम्पलीफिकेशन के दौरान अगर इस एम्पलीफाइड आउटपुट पे कोई DC सिग्नल सुपर इम्पोज हो जाए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, नेक्स्ट सर्किट में एक्सप्लेनेशन है इसका बढ़िया। आप यहाँ पे देखिए, सपोज आपका ये आउटपुट होना चाहिए एम्पलीफाइड आउटपुट, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि इस सर्किट में चूंकि डीसी सप्लाई भी है VCC और माइनस VCC, तो उसका कुछ कंपोनेंट अगर इस आउटपुट में सुपर इम्पोज हो जाए यानी ऐड हो जाए, और एडिशन प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, तो ये जो आउटपुट है एम्पलीफाइड आउटपुट, ये इसका लेवल ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाता है। अगर प्लस में ऐड हुआ है तो ऊपर शिफ्ट होगा और माइनस में ऐड होगा तो नीचे शिफ्ट होगा, जैसा कि कैलेंपर में होता है। तो लेवल शिफ्टर का काम है इस शिफ्टेड आउटपुट को जो है ओरिजिनल स्टेट पे यानी जीरो एक्सिस पे जो है ये जीरो एक्सिस पे शिफ्ट कर देता है। अगर आप इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो जीरो नहीं होगा, लेकिन इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो जीरो होगा। दिस मीन्स द फंक्शन ऑफ लेवल शिफ्टर इज टू शिफ्ट द नॉन जीरो डीसी आउटपुट सिग्नल टू द जीरो डीसी आउटपुट सिग्नल। इसका एवरेज वैल्यू जीरो होगा और इसका एवरेज वैल्यू जीरो नहीं होगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द आउटपुट स्टेज। आपको पता है कि op-amp का आउटपुट इंपीडेंस आइडियली बहुत ही छोटा होता है, आइडियली जीरो होता है और प्रैक्टिकली वेरी वेरी स्मॉल होता है। दैट्स वाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आउटपुट स्टेज टू प्रोवाइड द वेरी लो आउटपुट इंपीडेंस और आइडियली जीरो आउटपुट इंपीडेंस टू द op-amp. And what is this circuit? This is basically a complementary symmetry push-pull amplifier, and due to this circuit the output impedance of the op-amp is ideally zero or practically very very low. So guys, this is all about the block diagram of op-amp and its explanation. Now I am going to another facts, another basic concept of op-amp. Okay, one question arises that what should be the maximum output voltage of an op-amp? तो मैं आपको बता दूं कि op-amp का आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम और मिनिमम प्लस माइनस V सैचुरेशन होता है। प्लस माइनस V सैचुरेशन से ज्यादा आउटपुट वोल्टेज किसी भी op-amp में पॉसिबल नहीं है। और ये V सैचुरेशन वोल्टेज क्या कहते हैं, अगर आप डिफरेंशियल, मैंने एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया है कि एक्स एक्सिस में डिफरेंशियल इनपुट लिया गया है और वाई एक्सिस में आउटपुट वोल्टेज लिया गया है। जैसे जैसे डिफरेंशियल इनपुट पॉजिटिव में बढ़ेगा वैसे वैसे आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम पे आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है, और जब आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट होता है तो मैक्सिमम वैल्यू को हम प्लस V सैचुरेशन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, जैसे जैसे आप नेगेटिव डिफरेंशियल वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे नेगेटिव में आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा और एक टाइम पे आउटपुट वोल्टेज सैचुरेट हो जाता है। इस मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज को माइनस V सैचुरेशन कहते हैं। तो किसी भी op-amp का आउटपुट वोल्टेज माइनस V सैचुरेशन और प्लस V सैचुरेशन के बीच में ही लाई करता है। और एक क्वेश्चन एराइज होता है कि ये सैचुरेशन वोल्टेज कितना होगा। तो सैचुरेशन वोल्टेज हमेशा सप्लाई वोल्टेज से कम होता है, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज प्लस माइनस VCC है। सपोज VCC की वैल्यू अगर प्लस माइनस 15 वोल्ट है तो प्लस माइनस V सैचुरेशन की वैल्यू भी 15 वोल्ट से कम होगा, यानी मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज जो है 15 से कम, प्लस 15 से कम, और मिनिमम आउटपुट वोल्टेज भी जो है माइनस 15 से कम होगा। क्योंकि आपको पता है कि ट्रांजिस्टर ही से बना हुआ है ये सर्किट, और ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट वोल्टेज है जिसको आप VCE कहते हैं, आप KVL अगर लगाएंगे तो VCE इक्वल टू V आउटपुट माइनस VCC माइनस ICRC होता है। VCE इक्वल टू VCC माइनस ICRC। तो VCC माइनस ICRC इसका मतलब है कि हमेशा आउटपुट वोल्टेज यानी VCE की वैल्यू VCC से कम होगा एक्टिव रीजन में, क्योंकि एक्टिव रीजन में IC की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, IC जीरो नहीं होगा। कट ऑफ रीजन में यह और सी बात है कि कट ऑफ रीजन में IC जीरो होता है तभी आउटपुट वोल्टेज कुछ हो सकता है, लेकिन फॉर एम्पलीफायर सर्किट द ट्रांजिस्टर मस्ट बी वर्क इन द एक्टिव रीजन, दैट इज व्हाई द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन VCC वोल्टेज। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द लिमिटेशन ऑफ op-amp। अगर मान लो कोई भी एम्पलीफायर है, आपको क्वेश्चन आ जाए कि सपोज एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है जिसका
फीडबैक रेजिस्टेंस अगर 100 किलो ओम हो और इनपुट रेजिस्टेंस यानी R1 अगर 1 किलो ओम हो और इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट हो और नॉन इन्वर्टिंग पे 0 वोल्ट हो तो आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा। आपको पता ही है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज होता है -RF/R1 इंटू वी इनपुट, तो -100 इंटू 1 -100 वोल्ट। ये मैथमेटिकली -100 वोल्ट सही है, लेकिन प्रैक्टिकली ये वोल्टेज -100 नहीं होगा, ये वोल्टेज -V सैचुरेशन के बराबर होगा। तो सो योर टेक्निकल आंसर शुड बी -V saturation will be the answer. Okay guys, in the next video I will discuss the two modes of operation of op-amp, that is differential mode and common mode, and with the help of these two modes I will derive an expression of output voltage, error and CMRR. So okay guys, see you in the next video.